Minister of Cooperation, Shri Amit Shah, Honorable Chief Minister Odisha, Shri Naveen Patnaik, Honorable Union Minister Education, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan, and the host team. Can we have a louder round of applause, please? A big day for Odisha indeed, and we welcome our Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah ji, to this August gathering. Time for the formal welcome address, and may I request esteemed Chief Secretary Odisha, Shri Pradeep Kumar Jaina, to do the honor, please. नमस्कार, सुप्रभात। आज के पावन अवसर पर इस मंच पर हमें एक साथ अति विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हमारे प्रिय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मंच पर हमारे साथ ओडिशा के अति प्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक भी उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ इस मंच पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे उड़ीसा राज्य के निर्माण, स्टील और खान मंत्री श्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारे बीच ओडिशा सरकार के प्रमुख शासन सचिव, निर्माण विभाग और NHI के मान्यवर सदस्य भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप सभी का सदैव उपस्थित हमारे आयोजन की शोभा बढ़ गई है। आप सबको हम स्वागत करता हूं। आज माननीय गृह सहकारिता मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रकल्प कामाख्या नगर बाईपास से डुबरी तक जाने वाले 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण करेंगे। मुझे खुशी है कि इस परियोजना की लाभ मुझे भी मिलेगी, क्योंकि मेरी गांव उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी है। हमें आशा है ये परियोजना तालचेर कोल बेल्ट को कलिंग नगर स्टील क्लस्टर को जोड़ता है और उससे इस क्षेत्र का लोगों की आर्थिक आकांक्षा को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही आज माननीय गृह और सहकारिता मंत्री तथा हमारे माननीय मुख्यमंत्री कलाहांडी जिले का मोटेर से लड़ूगांव होते हुए बानेर को जोड़ने वाले रास्ता का चौड़ा करने का प्रस्तावित परियोजना का शिलान्यास करेंगे। आज हमारे समस्त अति विशिष्ट अतिथियों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for those overwhelming words of welcome. Honorable Minister, Works Department is here with us. May I request you, sir, Shri Prafulla Kumar Malik, to share your thoughts with the House. Namaskar to all. Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, Honorable Union Minister of Home Affairs and Cooperation Shri Amit Shah ji, Honorable Union Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship Shri Dharmendra ji, Chief Secretary, Principal Secretary, Works Department and Senior Member of NHI, other dignitary of the dash. It is proud moment of Odisha, the folding of a Kamakya section of NH 200, new NH 53 has been completed with the operation of this highway to 4 lane with the paved soldiers. There will be substantial gain in terms of reduced travel time, enhancement of communication between Paradip, Dhamara, Gopalpur ports with mining and industrial areas of Angul, Talcher, Kalinganagar. Under the visionary leadership of Honorable Chief Minister, infrastructure development is given almost priority. Infrastructure projects lead to economy and social development. During 2001, from a meager budget of 298 crore in 2023-24, the budget of Works Department is now more than 9,000 crore, which is a record growth of 30 times. In addition to it, we add the infrastructure projects of health, insurance, Adarsh Vidyalaya, court building, etc. Works Department is executing projects with about 1,900 crore during 23-24. The completion of the 4-lane Biju Expressway connecting Raurkela to Ampani
for a length of 546 kilometers in record time, completion of the long-awaited Gurupriya Bridge in Swabhiman Anchal completed, completion of 521 bridges, and in last 20 years speaks for itself the thrust attached by the government in infrastructure development of the state. Now, Biju Express Way 2 shall provide full and connectivity from Berhampur to Jaipur for about 335 kilometers. So once this project is completed, the travel time for Berhampur to Jaipur will be about 5 hours, which is now taking more than 8 hours. To add a few more, state is now undertaking construction of a SC Medical College as a world-class health infrastructure. 5 numbers of medical college, 9 numbers of teaching hospital, 10 numbers of district healthcare hospital, 10 number of cancer care hospitals, and other multi-specialty health facilities. To boost tourism and cultural activity, state is committed for infrastructure development towards in important tourist destination at Srikshetra Puri, Chandrabhaga, Ekram Kshetra, Sambaleshwari, Harishankara, Nrsimhanath, Vitarka, Talaswari, etc. Dhanyabad, Bande Utkal Janani. Thank you, Honorable Minister Shri Malik, for those extremely encouraging and informative words. Ladies and gentlemen, on this third letter day, we are dedicating to the nation the four-laning of Kamakhya Nagar Duburi section of NH 53 on EPC. May I request our Honorable Chief Guest, Honorable Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah ji, to please do the honor in the presence of Honorable Chief Minister Odisha, Shri Naveen Patnaik, and Honorable Union Minister, Shri Dharmendra Pradhan. Ladies and gentlemen, please put your hands together. The four-laning of Kamakhya Nagar Duburi section of NH 53 on EPC has been dedicated to nation by Shri Amit Shah ji in the presence of Honorable Chief Minister Odisha and Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan. Thank you, dignitaries, for doing the honor. Coming up next is a short audio-visual on all the outstanding work of NHAI. Can we have a look at the AV, please? भारत सरकार और उड़ीसा सरकार सड़कों के नेटवर्क को तीव्र और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी अविरल विकास की धारा के अंतर्गत उड़ीसा के प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की उपस्थिति में आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कामाख्या नगर बाईपास को डुबरी से जोड़ने वाले 4 लेन राजमार्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। लगभग 51 किलोमीटर लंबा ये खंड 761 करोड़ की लागत से बना है। इस खंड के ऊपर 2 मेजर ब्रिज, 10 माइनर ब्रिज, 7 व्हीकल अंडरपास, 2 एनिमल अंडरपास और 1.73 किलोमीटर लंबा बाईपास है। इस सड़क के निर्माण में पर्यावरण एवं वन संरक्षण का विशेष ख्याल रखा गया है। वन्य जीवों के अबाध आवागमन के लिए एक 160 मीटर और एक 80 मीटर एनिमल अंडरपास का निर्माण किया है। औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तलचर कामाख्या नगर से मात्र 45 किलोमीटर दूर है। जहां 4 बड़े स्टील प्लांट्स हैं, वहीं डुबरी में 2 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। इन महत्वपूर्ण संयंत्रों के बीच अब कनेक्टिविटी और सुगम हो जाएगी। इसके फलस्वरूप क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, अनाज, वस्त्र उद्योगों और अन्य खनिजों का आवागमन सरल हो जाएगा। समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। निश्चय ही ये राजमार्ग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का द्वार खोल देगा और उड़ीसा के प्रगति पथ को प्रशस्त करेगा।
Thank you very much, NHAI family, for this wonderful gift to Odisha. I was expecting a bigger round of applause. Everyone, please, for NHAI. It's been a lot of hard work. Ladies and gentlemen, as I was saying, it's a significant day for Odisha. We will also be laying the foundation stone for widening and strengthening of Moter to Banner via Ladugaon Road of Kalahandi district. May I request our Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah ji, to please do this honor in the presence of Honorable Chief Minister Odisha and Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan ji. Ladies and gentlemen, Shri Amit Shah ji, in the presence of Shri Naveen Patnaik, for widening and strengthening of Moter to Banner via Ladugaon Road of Kalahandi district. The connectivity is going to be seamless. The traders and farmers are going to be highly benefited. Thank you so much, sir, for doing the honor. Ladies and gentlemen, education, skill development, and entrepreneurship are the three pillars on which the future of the youth and the future of the country rests. And Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji trusts only one leader when it comes to taking care of these humongous tasks and these three ministries. And we proudly say this leader is Oriya. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I request Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan to address you all. जय जगन्नाथ नमस्कार आजिर कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव उपस्थित थिबा भारतर यशस्वी गृहमंत्री माननीय श्री अमित शाह महाशय मंच रे उपस्थित थिबा ओडिशार परम आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक महाशय खनिज तथा रास्ता विभाग मंत्री मोर बड़ भाई आदरणीय प्रफुल्ल मल्लिक महाशय ये सभागार उपस्थित थिबा ओडिशार वरिष्ठ मंत्री मान्यवर अशोक पंडा महाशय दूरसंचार जोड़ी होता ओडिशार अन्यतम युवा मंत्री सान भाई प्रीतिरंजन घड़ई महाशय मंच रे उपस्थित थिबा ओडिशार मुख्य शासन सचिव आदरणीय श्री जेना मंच रे थिबा समस्त अतिथिवृंद भारत सरकार तथा राज्य सरकार समस्त अतिथिगण समस्त सांबादिक बंधु माने मु सर्वप्रथमे ओडिशा तरफरु आजिर मुख्य अतिथि मान्यवर अमित शाह को मोदी सरकार ओडिशा प्रति ये सदैव मनोभाव जो कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची धन्यवाद दूची ये प्रकल्प को आसिके इठी लोकार्पण आउ शुभ देथिबारु विगत 9 वर्षरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोदयर जो कल्पना अच्छी से कल्पनार आज गोटे महत्वपूर्ण दिन उभय राज्य और केंद्र सरकार समन्वय संघीय व्यवस्था अनुजाई ये जो कार्यक्रम यदि मो ओडिशा संपर्क में 2-3 तथ्य उल्लेख करी बहुत पुराना कथा को 75 वर्षर कथा को हिसाब न करिकी स्वतंत्रता परवर्ती समय जदि मु गत 20 वर्षर गोटे तुलनात्मक करी दिल्ली रे अनेक सरकार माने दायित्व रे थिले विगत 9 वर्षरे मोदी सरकार ओडिशा को 18,83,000 कोटी टंकार दायित्व नहीं ताकू जदि मु तार ठीक पूर्व 10 वर्ष सह तुलना करी ये यार मात्रा 2,93,000 हम 2004 रु 14 पर्यंत दिल्ली रे बसिथिबा सरकार ओडिशा को 2,93,000 कोटी टंका देथिबा बेले आज मोदी सरकार विगत 9 वर्षरे 18,83,000 टंकार दायित्व नहीं जदि मु याको ओडिशार 4.5 कोटी लोकंकर परिवार पिछा यार हिसाब मु करी
मोदी सरकार समय रे 2,15,000 कोटी टंका परिवार पिछा दायित्व आसी ताको जदि तुलना करा जिवो विगत 10 वर्ष रे ये 30,000 टंका रे सीमित रहिबो। आज ये योजना गुड़िक ओडिशार रास्ता, ओडिशार रेलपथ, ओडिशा रे आसुथुबा एबे लोकसभा रे उत्तर आसीची 23,000 कोटी टंका केवल डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड नारे आसीची। अर्थ कमिशन रो दायित्व, जीएसटी रे परिवर्धित दायित्व मु कृतज्ञता देवी श्री अमित शाह को। एनडीआरएफ रो 1,000 कोटी टंका मिलु नथला, आज ओडिशा को 4,000-5,000 कोटी टंका एसडीआरएफ को मिसेले ये पाखापाखि 10,000 कोटी टंकार दायित्व आसीची। मनरेगा हो, पीएम आवास हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, पीएम किसान हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम जनधन हो, मुद्रा हो किंबा मागणारे भारत सरकार तरफ उपलब्ध करा जाइथिबा टीका संपर्क रे हो। आज ओडिया अस्मितार एक नुआ प्रयोग होउची। महाप्रभु जगन्नाथ सेवा विषय हो, महिमा धर्मर महात्मा को अंतर्जातिक स्तर में पहुँचेबा कथा हो किंवा ओडिया आदिवासी झील द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पदवीर दायित्व रे बसेबा हो। आज ओडिशार नुआ परिचय तैयारी होउची। ओडिशार पद्म पुरस्कार संख्या, ओडिशार प्रथम थर करी राज्यसभा को मनोनीत सदस्य, मन की बात रे ओडिशा विषय रे उल्लेख, आदिवासी समाज प्रति विशेष ध्यान, प्राकृतिक विपर्यय बेले ओडिशा पाई दायित्व, पाइक स्मारक को एक तीर्थ क्षेत्र में परिणत करिवार कल्पना। सर्वोपरि ओडिशार परिचय है ओडिशार मातृभाषा। मु आउ थे मन पकेबी श्री अमित शाह श्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि कारण आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे भारतीय भाषा आधारित, मातृभाषा आधारित आज शिक्षार व्यवस्था है। तार फलस्वरूप ओडिशा रे भी राष्ट्रपति आ ओडिशार मुख्यमंत्री उपस्थिति रे इंजीनियरिंग पढ़ारे भी आज ओडिया भाषा रे पाठ पढ़ेबार व्यवस्था है। बंधुगण, स्वतंत्रतार 75 वर्ष पूरी सारलाणी। ये अपार संभावना राज्य ओडिशा को आम समस्त दायित्व अच्छी आगू नबार। दिल्ली रे अनेक सरकार माने बसी थिले। आज जो रास्ता विषय रे एठी आमे लोकार्पण कले 4 लेन करले, मो पाई एक भावनात्मक विषय हबो। गृहमंत्री जी जो आज की ओडिशा की पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री बैठे हैं और मैं, हम एक ही जिले से आते हैं। ये जिले, ये रास्ता पहली बार एक ग्रामीण सड़क से, स्टेट पीडब्ल्यूडी सड़क से जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इसको पहली बार एनएच का मान्यता दिया गया था। उस समय में 90s की अंतिम दशकों में 2001-2 में जो एक कच्ची सड़क एनएचआई में परिवर्तित हुई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में वो 4 लेन की राष्ट्रीय महामार्ग बन रहा है। इसकी लोकार्पण के लिए आप आए हैं और एक प्रकार से मेरे गांव को आप रास्ता देने के लिए आए हैं। मैं मेरे जिले की ओर से भी आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद दूचे ओडिशा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को, भारत सरकार को ये काम रे सहयोगी हेतिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। Honorable Union Home Minister and Cooperation Shri Amit Shah Ji, Honorable Union Education Minister Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister Works Odisha Shri Prafulla Kumar Malik, Honorable MPs, senior officers of both central and state governments. I welcome the Honorable Home Minister, Shri Amit Shah to Odisha, the land of Lord Jagannath. The new Odisha is a unique transformation story, setting benchmarks across various sectors. My government believes that connectivity is key to progress of the state and the empowerment of our people. A case in example is the Guru Priya Bridge,
connecting the Swabhiman Anchal in Malkangiri. Construction of this bridge has played a catalytic role in the development of the entire area. The Biju Expressway, an economic corridor connecting western Odisha with southern Odisha, will be a crucial platform to propel growth in that region. The budget of our works department has seen a quantum jump of 98% since 2000, from about rupees 280 crores to more than 15,000 crores now. This year we plan to improve 6,500 kilometers of roads and construct around 300 bridges, which will provide huge momentum to growth and opportunities. In recent years, we have completed 2 airports at Jaipur and Utkala, and a greenfield airport in Malkangiri is under construction. Odisha always believes in cooperative federalism, and I thank the Government of India for its support for the state in its development agenda. I once again warmly welcome Union Home Minister Shri Amit Shah to Odisha. Thank you. Bande Utkal Janam. Thank you very much, Honorable Chief Minister Odisha, Shri Naveen Patnaik, for those insightful words. Ladies and gentlemen, over the last decade, India has transformed into a strong, independent, ambitious country that will go out of its way to support friends, but will show no mercy to its enemies. And it took a lot of strength, courage, and some very bold decisions to make this transition happen. One leader stood behind all those strong decisions, rock solid, and with a lot of conviction that come what may, the world has to see this new India. And we all adore him, admire him for being a true nationalist. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I request our Honorable Chief Guest, Honorable Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah Ji, to please enlighten us with his address. Shri Amit Shah. आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित ओडिशा के मुख्यमंत्री रहने का जिन्होंने रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, मेरे मित्र और केंद्र में मानव संसाधन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा के रोड एंड बिल्डिंग मंत्री श्रीमान प्रफुल्ल कुमार मलिक जी, मुख्य सचिव ओडिशा श्री जेना जी, श्री वीर विक्रम यादव जी, श्री वीके रजावत जी, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा जय जगन्नाथ। सबसे पहले उत्कल प्रदेश की इस महान भूमि पर मैं महाप्रभु के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं गुजरात से आता हूं, जगन्नाथ जी यहां विराजते हैं, मगर मैं उत्कल प्रदेश के वासियों को बताना चाहता हूं कि आपके मन में जितनी जगन्नाथ के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, इतनी ही भक्ति गुजरात की जनता के मन में महाप्रभु के। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, रथ यात्रा भी निकलती है और कई सालों से निकलती, और इसका इतना ही सम्मान
रथ यात्रा का हमारी भूमि पर वह भी है। तो सभी उड़िया वासियों को मैं फिर से जय जगन्नाथ कहता हूँ। मैं आज यहाँ आया हूँ तब स्वाभाविक रूप से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भी स्मरण आना स्वाभाविक है, क्योंकि यही महान भूमि से राष्ट्रपति बनने का गौरव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दिया है। आज यहाँ पर मैं 5 अगस्त को आया हूँ। उस वक्त आज भारत रत्न गोपीनाथ जी का पुण्यतिथि है। गोपीनाथ जी ने असम और नॉर्थ ईस्ट विभाजन के समय भारत के अंदर बने रहें, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और वो महान देशभक्त के कारण आज पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना है। हम सब गोपीनाथ बरदोलाई जी को श्रद्धांजलि देते हैं। आज देश के महान शिक्षाविद, समाज सेवी, उड़ीसा के ही आचार्य प्यारे मोहन जी का भी जन्मदिन है। मैं आज के दिन प्यारे मोहन जी को भी बहुत सम्मान के साथ याद करना चाहता हूँ। और मित्रों, आज 5 अगस्त भी है। 5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का काम, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर समग्र देशवासियों और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, आज 2 कार्यक्रम यहाँ पर नवीन बाबू की उपस्थिति में, धर्मेंद्र जी की उपस्थिति में समाप्त हुए। NH 200 के कामाख्या नगर धुबरी 4 लेन का चौड़ीकरण का काम आज राष्ट्र को समर्पित हो गया। इस निर्माण में 51 किलोमीटर के एक खंड बनाने में 761 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार को आई है। परंतु यह राजमार्ग उड़ीसा के खनिज समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्से और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, कहते हैं कि भूमि पर बने हुए राजमार्ग वो व्यक्ति की हथेली में बनी हुई भाग्य रेखा के समान होते हैं। देश का भाग्य राजमार्गों के साथ जुड़ा हुआ है। देश का विकास, देश का अर्थतंत्र का विकास वो राजमार्गों के साथ जुड़ा है। और मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर राजमार्गों के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। और आज एक दूसरा काम भी हुआ। कालाहांडी के मोटर से बैनर तक लाड़ू गांव के रास्ते होकर रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी शुरुआत हुई है। लगभग 15 किलोमीटर की लंबाई का ये मार्ग 34 करोड़ रुपए से आज जब समाप्त होगा, इस रास्ते को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो इरिगेशन का रकबा बढ़ाना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बढ़ाना हो, चाहे नए डैम बनाना हो, चाहे बड़े बड़े ब्रिज बनाना हो, छोटी सी पुलिया बनानी हो, या नेशनल हाईवे बनाना हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव को मुख्य मार्गों के साथ जोड़ना हो, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये 9 साल के अंदर एक बहुत
महत्व दिया गया, इसके पीछे बजट का ढेर सारा पैसा लगाया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बगैर देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और इसलिए फास्टैग से फास्टर टोल कलेक्शन, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में दक्षता, विवादों का शीघ्र समाधान, सूचना और प्रौद्योगिकी पर जोर, वित्त पोषण के वैकल्पिक तरीके ढूंढना, ये सब का एक वैज्ञानिक समन्वय कर राजमार्गों की निर्माण की गति को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बढ़ाया है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को बताना चाहता हूं, 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर राजमार्ग बनते थे और 21-22 में 12 किलोमीटर से बढ़कर 29 किलोमीटर बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इस राजमार्गों के निर्माण से स्वाभाविक रूप से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे से आर्थिक गतिविधियां और सुचारू रूप से चलेगी। जहां तक ओडिशा का सवाल है, ढेर सारी प्रमुख परियोजनाएं की गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 बालासोर से जारपोखरिया तक लगभग 80 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए की खर्च से, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 बिंजाब हाल से तेलीबानी खंड 78 किलोमीटर और 1300 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 सिंगारा बिंजाबहल खंड 104 किलोमीटर और 1300 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 बहरागोड़ा से सिंगारा तक और 88 किलोमीटर और 1200 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 तेलीबनी से संबलपुर तक 51 किलोमीटर 712 करोड़ रुपए की लागत और कामाख्या नगर धुबरी खंड 761 करोड़ की लागत से आज समाप्त हो रहा है। ये जो विकास का काम हुआ है, इससे समग्र ओडिशा के अर्थतंत्र को गति मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में समग्र देश में, न केवल पूर्व में, समग्र देश में कहा था कि देश के पूर्वी हिस्से का जब तक विकास नहीं होता, देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। पूर्वी क्षेत्र का विकास जब हम करते हैं, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र को विकास के मापदंड पर एक समान जगह पे लाते हैं, तभी देश का विकास हो सकता है। और इसके लिए पूर्वी क्षेत्र को हमेशा एक तवज्जो नरेंद्र मोदी सरकार ने दी और उड़ीसा को विशेष तवज्जो देने का काम किया है। मित्रों, एक जमाने में ये पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित था। 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को साथ में लेकर, इसमें राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है, साथ में लेकर नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है और उसके नतीजे भी आए हैं। 2015 से 2019 तक नक्सल घटनाओं में जो संख्या थी उसकी 30% कमी आई है, मुठभेड़ों में 32% कमी आई है, मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 56% कमी आई है और स्टोल पेंटिंग के अंदर भी बहुत बड़ी कमी आई है। मैं आज उड़ीसा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नक्सल आंदोलन को नकेल कसने में उड़ीसा ने और नवीन बाबू ने हमेशा हमारा समर्थन किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है। आज जब मैं उड़ीसा में आया हूं, तब ये इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है। धर्मेंद्र जी ने टोटल कंट्रीब्यूशन का आंकड़ा दिया। मैं डिवोल्यूशन फ्रंट और ग्रांट इन एड की बात करना चाहता हूं।
कि यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने 1,14,000 करोड़ रुपया दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दोनों ही हेड के अंदर 4,57,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कुल मिलाकर योगदान को लेके तो 3 लाख से बढ़ाकर 18 लाख करोड़ तक का योगदान बढ़ाया गया, जो 6 गुने से ज्यादा है। ढेर सारी चीजें हुई हैं। रेलवे के लिए 10,000 करोड़, 800 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन, IIT भुवनेश्वर, एम्स बनाने का काम हुआ, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र को यहाँ लाया गया, लगभग ESI अस्पताल भुवनेश्वर का भी उन्नयन किया गया, और भुवनेश्वर एम्स की स्थापना 1500 बिस्तर वाले वो करने का काम भी किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार उड़ीसा के विकास के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। किसान समृद्धि सम्मान योजना में 40 लाख किसानों को फायदा मिला। जल जीवन मिशन में 54 लाख घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया गया। 90 लाख शौचालय बनाए गए। 3 करोड़ 25 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त देने का काम भारत सरकार कर रही है। 6 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, और 17 लाख ग्रामीणों के लिए घर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उड़ीसा के अंदर डिजास्टर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं नवीन जी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के हर इनिशिएटिव को नवीन बाबू ने जमीन पर उतारने में भारत सरकार की मदद की है, और उड़ीसा सरकार ने खुद भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ढेर सारे नए इनिशिएटिव लेकर पूरे देश को रास्ता बताने का काम किया है कि 2 सरकारें अगर मिलकर काम करती है तो कुदरती आपदा भी किस प्रकार से कंट्रोल की जा सकती है। उड़ीसा में आया हुआ साइक्लोन वो पूरी दुनिया में जाना जाता था, और हजारों लोग मारे जाने के कारण जाना जाता। आज उड़ीसा में साइक्लोन आता है और लगभग 0 कैजुअलिटी होती है। इसका भी पूरी दुनिया एक नोट ले रही है। मोदी जी ने NDRF के माध्यम से, NDMA के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट को शासन का स्वभाव बनाने का काम किया है, और उड़ीसा सरकार ने इसमें ढेर सारा समर्थन किया है। मैं आज ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और फिर से एक बार महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह महोदय। आपके शब्द हम सभी को देश निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर एक बार जगन्नाथ धाम में आपका स्वागत, और महाप्रभु हमेशा आप पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। मैं रिक्वेस्ट श्री BK Rajawat from NHAI family to please propose vote of thanks. Respected Home Minister Shri Amit Shah ji, respected Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, respected Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Minister Government of India, respected Shri Chief Secretary Sahab, Shri Principal Secretary Yadav Sahab, and Shri Honorable Minister PWD Malik Sahab. मैं NHAI की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से सभी महान जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता हूं, और जो हमारे मीडिया के कर्मचारी और जो दूसरे अतिथि लोग और जो स्टेट गवर्नमेंट के अन्य अधिकारी लोग जो आए हैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं। सो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। थैंक यू। Ladies and gentlemen, all rise for national anthem.
हिमाचल यमुना गंगा उत्सर जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Ladies and gentlemen, with this we wind up the program. Thank you. Jai Hind, Vande Utkal Janani. Let's give an overwhelming round of applause for our Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah ji, our guest of honor, Shri Dharmendra Pradhan, the captain of the host team, Honorable Chief Minister Odisha, Shri Naveen Patnaik, and thank you for your cooperation and participation in making this day successful. Namaskar, Vande Utkal Janani.